Now we will start discussing about the usage of the modals may and might. So the may and might are also used in many situations, and the first situation is tenses. Let's discuss about the use of may first. May is used in the sentences which are being spoken in present tense. Let's discuss about the examples. She may reach at time. शायद वो वक्त पर पहुंच जाएगी. I may go to the party. शायद मैं पार्टी के लिए जाऊंगा. They may stay at home. वो घर पर ही शायद वो घर पर ही रुकेंगे. तो ये सभी situations क्या हैं? These situations are indicating about that particular circumstance in the present time. उस वक्त पर वर्तमान समय की बात कर रहे हैं, वर्तमान के situation की बात कर रहे हैं. And whenever we have to talk about any situation which is happening at the present time, at that time, we can use may. Now the use of might, and might as we all know is the past form of may. Use in tenses. Whenever we speak in sentence which is in past perfect tense, then we use might. For example, I might have reached last night if it weren't rained. I might have reached last night. मैं कल रात को ही पहुंच जाता if it weren't rained. अगर बारिश नहीं हुई होती तो. She might have taken the book, but you weren't at home. वो कल रात को ही कल ही आपसे बुक ले लेती पर आप घर पर नहीं थे. Past perfect tense की बात कर रहे हैं. Third sentence, you might have called me, but my phone was switched off. आपने शायद पास्ट में मुझे फ़ोन किया होगा पर मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था. So, dear children, whenever we have to talk about any situation which is happening at the present time, then we use may. And if we are talking about the past time situation, then we use might. Second situation is probability. किसी चीज़ के होने की संभावना, probability. So if something is likely to happen, कोई चीज़ कोई सिचुएशन जो कि होने की संभावना है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? may का इस्तेमाल करते हैं. It may rain today, sky is partially cloudy. आज कहता है sky जो है आकाश partially cloudy है, थोड़े बादल हैं. It may rain today, तो शायद बारिश हो सकती है ना? तो likely to happen, ऐसा सिचुएशन, ऐसी बात जो होने की संभावना है. Second example, you may get promotion as you are working really hard. कहता तुम्हारी प्रमोशन लगता है जल्दी हो जाएगी क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो. Third situation, we may go on vacation this summer. हम इस समय में, इन गर्मियों में वेकेशन में जा सकते हैं, छुट्टियों में हम जा सकते हैं. So these are the situations which may likely to happen, जो कि होने की संभावना है. So any kind of a situation where that particular situation or particular incident is likely to happen, जो कि होने की संभावना है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? may का इस्तेमाल करते हैं. और might का इस्तेमाल हम कब करते हैं? if there is less probability of something to happen, कोई ऐसी situation जो कि जिसके होने की संभावना थोड़ी कम हो, less probability हो, जिसके होने की संभावना थोड़ी कम हो, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? might का इस्तेमाल करते हैं. Now let us discuss the examples here. I might reach in meeting in time if the traffic jam opens. कहता मैं शायद मीटिंग में टाइम पर पहुंच जाऊंगा, बट इफ द ट्रैफिक जैम ओपन्स, अगर ये ट्रैफिक जैम जो है खुल जाता है तो यहाँ पर लेस प्रोबेबिलिटी है. ट्रैफिक के खुलने की संभावना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. ट्रैफिक ओपन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. अगर हो गया ओपन तो मीटिंग में पहुंच जाएगा, और अगर नहीं हुआ ओपन तो मीटिंग में शायद वो नहीं पहुंच पाए. तो क्या है? लेस प्रोबेबिलिटी है, कोई ऐसा सिचुएशन, ऐसा इंसिडेंट जिसकी होने की संभावना थोड़ी कम है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? माइट का इस्तेमाल करते हैं. We all got surprised when John said he might stand first in class. हम सभी हैरान हो गए जब जॉन ने कहा कि वो शायद क्लास में फर्स्ट आ जाएगा. तो इट मीन्स सभी लोग जॉन को जानते हैं, कि सबको पता है कि जॉन स्टडीज़ में उतना अच्छा नहीं है या फिर वो बहुत हार्ड वर्किंग नहीं है, पर फिर भी अगर जब जॉन कहता है कि मैं क्लास में फर्स्ट आऊँगा, तो सभी लोग क्या होते हैं? सरप्राइज हो जाते हैं. तो एट दैट टाइम वी यूज़ माइट, बिकॉज यहाँ पे क्या है? जॉन के फर्स्ट आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी क्या है? वो लेस है, कम है. That is why we are using might here.
इफ ही गेट्स फ्री ही माइट मीट मी टुडे, अगर वो आज फ्री हो जाता है टाइम पर तो वो शायद फिर मुझसे मिलेगा। अगेन लेस प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये पता नहीं कि वो टाइम पर फ्री होगा या नहीं होगा, है ना। अगर वो टाइम पर फ्री होता है तो मिलेगा, तो यहाँ पर लेस प्रोबेबिलिटी है ना। टाइम पर फ्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर हो गया तो मिलेगा टाइम पर फ्री, अगर नहीं हुआ तो वो नहीं मिल पाएगा। नाउ थर्ड सिचुएशन इज द परमिशन, द यूज ऑफ मे एंड माइट वाइल टेकिंग सम परमिशन। जब हम कोई परमिशन लेते हैं, किसी चीज की क्या लेते हैं, परमिशन लेते हैं, ठीक है। तो द यूज ऑफ मे, बेटा यूज ऑफ मे जो है यूज हो सकता है वाइल आस्किंग फॉर द परमिशन, जब आप किसी चीज की परमिशन ले रहे हो, पूछ रहे हो परमिशन के लिए, या आप जो है परमिशन दे रहे हो। दोनों ही सिचुएशन में, परमिशन लेने की सिचुएशन में भी और परमिशन देने की सिचुएशन में भी हम मे का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यू मे लीव अर्ली टुडे, है ना, आप कहता है आज जल्दी जा सकते हो। देखो मे आई कम इन में क्या, परमिशन आस्क, यू आर आस्किंग फॉर द परमिशन, आप परमिशन ले रहे हो, है ना। सो मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और सेकंड सिचुएशन क्या है, यू मे लीव अर्ली टुडे, तुम आज जल्दी जा सकते हो, तो आप क्या करो, आप परमिशन दे रहे हो किसी को, है ना। यू मे लीव अर्ली टुडे, आप आज तुम जल्दी जा सकते हो। एंड थर्ड सिचुएशन, मे आई हेल्प यू, है ना, अगेन आस्किंग, तो आप किसी को पूछ रहे हो कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। सो वाइल टेकिंग, वाइल नो इन द सिचुएशन वेयर द परमिशन इज गोइंग ऑन, सो while asking the permission or while giving the permission you may use may, आप may का इस्तेमाल कर सकते हो। Now here the usage of might, while asking for the permission or the situation where you are asking for some permission, at that time you can use might only when you are asking। आप giving, जब किसी को permission देनी है ना, गिविंग के टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आप माइट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। while giving the permission you cannot use might, yes, but while asking you might use might, आप might का इस्तेमाल फिर भी कर सकते हो, दो इट इज वेरी फॉर्मल, ये फॉर्मल होता है, बहुत लेस यूज होता है, इट इज नो वेरी लेस यूज्ड, वेरी ऑफन, नॉट यूज्ड वेरी ऑफन, है ना। बहुत ऑफन, अक्सर इसको यूज नहीं किया जाता, पर फिर भी अगर आप यूज करते हो तो ये सही है, पर अक्सर जो इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और ये परमिशन का इस्तेमाल क्या है, इसका माइट का इस्तेमाल क्या क्या किया जाता है परमिशन में, ओनली फॉर आस्किंग द परमिशन। माइट आई आस्क योर नेम, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ। माइट आई गेट द बुक वंस यू रीड इट, क्या मैं ये बुक ले सकता हूँ जब आप इसको पढ़ लें तो। माइट आई चेक योर वीजा प्लीज, क्या मैं आपका वीजा चेक कर सकता हूँ, राइट। सो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर यू आर आस्किंग फॉर समबडीज परमिशन, जब आप किसी का परमिशन लेने के बारे में बात कर रहे हो, अगेन यू कैन यूज माइट, तो आप माइट का इस्तेमाल कर सकते हो, दो इट इज नॉट वेरी मच और वेरी ऑफन यूज्ड, बहुत ऑफन यूज नहीं होता क्योंकि ये बहुत फॉर्मल है, ठीक है, पर फिर भी जो है माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप यहाँ पर। Now we'll discuss about the usage of will and shall, dear children. So there are two important rules in using will and shall correctly, right? And the first rule is the use of will and shall in normal future, and the second rule is use of will and shall in strong future. So let's discuss it. While using will and shall, dear children, we need to divide the subject into two parts. जब हम विल और शेल का इस्तेमाल करते हैं उस टाइम पर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज आई एंड वी, एंड द सेकेंड पार्ट इज यू, ही, शी, इट एंड दे। सो आई और वी का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, शेल के साथ करते हैं नॉर्मल फ्यूचर में। नॉर्मल, जब हम कोई फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल फ्यूचर टेंस, एट दैट टाइम वी यूज शेल, मोडाल शेल विद आई एंड वी। And especially these are the situations when we are talking about our some plans, some expectations and predictions. हम कुछ plans की बात कर रहे हैं, कुछ expectations, कोई उम्मीद है आप किसी चीज़ की, उसकी बात कर रहे हैं, कोई prediction, कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, I और we के साथ में shall का इस्तेमाल करते हैं। For example, let us discuss about a plan. कोई example दें, अगर sentence की बात करें, I shall go to Elante Mall tonight. और वी शैल गो टू एलांते मॉल टुनाइट, ये आपका प्लान है कि आज की रात शायद आप एलांते मॉल जाएं, राइट। इन एक्सपेक्टेशंस, आई शैल स्कोर गुड मार्क्स दिस ईयर, आपको एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको उम्मीद है कि आप जो है अच्छा स्कोर करेंगे इस बार। और वी शैल स्कोर गुड मार्क्स दिस ईयर बिकॉज वी आर वर्किंग हार्ड, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। एंड प्रेडिक्शंस, आई शैल स्कोर 98% दिस ईयर, और आई शेल टॉप इन द क्लास, मैं अपनी क्लास में टॉप करूंगा। और वी शेल स्कोर
वेरी गुड मार्क्स दिस ईयर इन आवर क्लास, राइट। सो प्रिडिक्शन, आप भविष्यवाणी कर रहे हो, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, आई और वी के साथ में शेल का इस्तेमाल करते हैं। और सेकंड क्या है रूल, मीन सेकंड रूल है सेकंड सिचुएशन, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। और वो फ्यूचर वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सम, व्हेन यू आर मेकिंग सम प्रॉमिस, जब आप कुछ वादा कर रहे हो, डिटर्मिनेशन, कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर, कुछ स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति की आप बात कर रहे हो, या थ्रेटनिंग, या आप किसी को धमकी दे रहे हो, कोई स्ट्रॉन्ग फ्यूचर, ऐसी ऐसी सिचुएशंस को कहते हैं स्ट्रॉन्ग फ्यूचर सिचुएशन, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करना है, in this kind of a situation, in these kind of situations we use will with I and we। इस टाइम पे हम I और we के साथ में किसका इस्तेमाल करते हैं, फिर will का इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली नॉर्मली हम shall का इस्तेमाल करते हैं, पर ये वाली सिचुएशन जहाँ पर कुछ प्रॉमिस कर रहा है, डिटर्मिनेशन की बात है, थ्रेटनिंग की बात है, तो आप क्या करते हो, I और we के साथ में will का इस्तेमाल करते हो। जैसे आप बोलो कि I will come to your home tomorrow for sure, आप किसी को प्रॉमिस करो अपने फ्रेंड को, कल मैं आपके घर में जरूर आऊंगा, I will come to your home tomorrow for sure, आपके घर में कल जरूर आऊंगा। डिटर्मिनेशन, I will not tell a lie throughout my life, आपकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपनी इच्छा शक्ति बना ली है कि जो आप पूरी उम्र जो है झूठ नहीं बोलेंगे, है ना, तो उसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन। थ्रेटनिंग, I will see you tomorrow, मैं तुम्हें कल देख लूंगा, है ना, we will just see you people in the नेक्स्ट मैच, आप थ्रेटनिंग कर रहे हो, किसी को धमकी दे रहे हो, राइट। तो इस तरह की सिचुएशन में हम क्या करते हैं, फिर आई और वी के साथ में विल का इस्तेमाल करते हैं। एंड सेम इज विद यू, ही, शी, इट एंड दे, और इसके साथ भी सेम है। नॉर्मल फ्यूचर में यू, ही, शी, इट एंड दे के साथ में विल का इस्तेमाल करते हैं, और शेल का इस्तेमाल हम कब करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग फ्यूचर, जब हम किसी के साथ प्रॉमिस कर रहे हो, कोई स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की बात हो और कोई थ्रेटनिंग की बात हो, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, यू के साथ में यू, ही, शी, इट और दे के साथ में शेल का इस्तेमाल करते हैं। प्लस नॉर्मल फ्यूचर में जब हम कोई सिंपल सी प्लानिंग की बात करें, कोई एक्सपेक्टेशंस है, कोई प्रेडिक्शंस की बात कर रहे हैं, तो हम यू, ही, शी, इट और दे के साथ में किसका इस्तेमाल करते हैं, विल का इस्तेमाल करते हैं। नाउ दिस इज लास्ट स्लाइड डियर चिल्ड्रन, एंड दिस इज द लास्ट discussion of the modals. So here we'll discuss about the usage of modals should, must and ought to, ठीक है। अब should का इस्तेमाल, let us discuss about the use of should first. तो इन जनरल एडवाइस, जब आप किसी का जनरल कोई एडवाइस दे रहे हो किसी को, है ना, किसी को कोई एडवाइस दे रहे हो, कोई उपदेश दे रहे हो, जनरल सा उपदेश है, एडवाइस है, तो उस टाइम पे आप शुड का इस्तेमाल करते हो। यू शुड गो टू द पार्टी, तुम्हें पार्टी में जाना चाहिए। यू आर इल, यू शुड कंसल्ट डॉक्टर, तुम बीमार हो, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए या कंसल्ट करना चाहिए। यू शुड वॉश योर हैंड्स ऑन रेगुलर इंटरवल, तुम्हें अपने हाथ जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पर धो लेने चाहिए, आपको अपने हाथ रेगुलरली धोने चाहिए। जनरल सा एडवाइस आप किसी को जब कर रहे हो, एट दैट टाइम यू यूज शुड। सेकेंड सिचुएशन, एक्सपेक्टेशंस, जब आपको कोई उम्मीद की बात कर रहे हैं, कोई उम्मीद है किसी चीज से आपको, तो अगेन यू यूज शुड अलॉन्ग विद बी। ही शुड बी रीचिंग, है ना, वो अभी पहुंचने ही वाला होगा, आपको उम्मीद है कि वो अभी पहुंचने ही वाला होगा। दिस मूवी शुड बी गुड, ये मूवी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको एक्सपेक्टेशंस है। द बस शुड रीच ऑन टाइम, जो है बस जो है वक्त पर पहुंच जानी चाहिए, और द बस शुड बी रीचिंग ऑन टाइम, बस जो वक्त पर पहुंचने वाली होगी, तो वही है ना, एक्सपेक्टेशंस के टाइम पे आप हमेशा फिर अगेन क्या करते हो, शुड का इस्तेमाल करते हो। एंड दिस थर्ड वन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेस्ट, द यूज विद लेस्ट, है ना, द यूज ऑफ शुड, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर डियर चिल्ड्रन, जहां पर भी ये लेस्ट वर्ड यूज होगा ना, तो लेस्ट के साथ हमेशा हमेशा क्या करते हैं, हम शुड का ही इस्तेमाल करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। ईट हेल्दी फूड लेस्ट यू शुड फॉल इल, भाई अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगे। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फॉल इल, लेस्ट यू शुड फेल, नॉट फॉल इल, इट शुड बी फेल। वर्क हार्ड, आप मेहनत करो, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। गेट अप अर्ली लेस्ट यू शुड लेट फॉर योर स्कूल, जल्दी उठो, नहीं तो आप स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विद लेस्ट वी ऑलवेज यूज शुड डियर चिल्ड्रन, राइट, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। नाउ द यूज ऑफ मस्ट, तो जनरल एडवाइस के लिए हम क्या करते हैं, शुड का इस्तेमाल करते हैं, बट वाइल गिविंग द स्ट्रॉन्ग एडवाइस, है ना, कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हो किसी को, कोई नेसेसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी बात है, उसकी बात कर रहे हो, जरूरी बात कर रहे हो, नेसेसिटी है, ऑब्लिगेशन है, जहां पर आपको कोई चीज जरूरी करनी, ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेटरी है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यू मस्ट गो टू द पार्टी एज यू विल मीट न्यू फ्रेंड्स देयर, है ना, आप स्ट्रॉन्ग एडवाइस कर रहे हो किसी को कि तुम्हें पार्टी में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि तुम पार्टी में क्या करोगे, अपने नए फ्रेंड से तुम्हें मिलने का मौका मिल सकता है।
यू आर सीरियसली इल, यू मस्ट कंसल्ट डॉक्टर, नेसेसिटी, देखो ज़रूरत है, तुम बहुत बीमार लग रहे हो, तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, मस्ट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब ऑब्लिगेशन, यू मस्ट वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग एल्स यू विल फॉल इल, तुम्हें अपने हाथ जो है ज़रूर धो देने चाहिए खाने से पहले, वरना तुम बीमार हो जाओगे, ऑब्लिगेशन है, वरना वो बीमार हो जाएगा, तो ऑब्लिगेटरी उसको अपने हाथ धोने चाहिए। एंड स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात हो तब भी हम क्या करते हैं, मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। द स्काई इज क्लाउडी, इट मस्ट रेन टुडे, भी क्या कहता है, आसमान में बहुत बादल हैं आज, तो लगता है बारिश होगी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, बड़ी पक्का बात है कि आज बारिश होने वाली, क्योंकि आकाश में बादल है। वेदर इज कोल्ड, इट मस्ट बी स्नोइंग ऑन द हिल्स, आज मौसम ठंडा है, इट मस्ट बी स्नोइंग ऑन द हिल्स, लगता है पहाड़ों में बर्फ पड़ रही है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है ना। शी वेयर्स ब्यूटीफुल ड्रेस, शी मस्ट बी रिच, तो कहते हैं शी वेयर्स ब्यूटीफुल ड्रेसेस, वो क्या करती है, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनती है, शी मस्ट बी रिच, पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो जरूर क्या होगी, अमीर होगी, राइट। नाउ द नेक्स्ट, द यूज ऑफ ऑट टू, अब ऑट टू का इस्तेमाल डियर चिल्ड्रन हम एक सिचुएशन में करते हैं, दैट इज मॉरल एडवाइस, जब आप किसी आदमी को एडवाइस दे रहे हो, उपदेश दे रहे हो जो कि मॉरली करेक्ट है ना, ये आपका मीन्स मॉरली समथिंग यू आर सपोज टू डू, जो कि आप करने के लिए आपको बिल्कुल ही क्या है, स्ट्रांगली ऑब्लिगेटरी आपको एक चीज करनी चाहिए, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, ऑट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल एंथम, देखो हम सबको अपने नेशनल एंथम, अपने राष्ट्रगान का रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो मॉरली ये हमारा क्या एक मौलिक धर्म है हम सबका, अपने राष्ट्रगान का क्या करना, रिस्पेक्ट करना, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं। यू ऑट टू डू योर जॉब ऑनेस्टली, आपको अपना काम जो है, अपना जॉब ऑनेस्टली करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए, ये भी आपका मॉरली आपको ये चीज करनी चाहिए। वी ऑट टू लुक आफ्टर आवर एज्ड एंड एलिंग पेरेंट्स, हमें अपने बूढ़े और बीमार पेरेंट्स का क्या करना चाहिए, देखभाल उनकी हमें करनी चाहिए, ये भी ऑट टू, क्योंकि आप एक ऑब्लिगेटरी है, मीन्स आपका मॉरल, ये आपका क्या है, आपका एक वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरली आपको ये चीज करनी चाहिए ना। यू ऑट नॉट टू स्प्रेड पॉल्यूशन, ए होना चाहिए, दिस इज ए, सो यू ऑट नॉट टू स्प्रेड पॉल्यूशन, आपको पॉल्यूशन जो है नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये बिल्कुल एक मॉरली करेक्ट चीज़ है कि आपको पॉल्यूशन, वातावरण में क्या है, प्रदूषण नहीं करना चाहिए। वी ऑट टू हेल्प आवर नेबर्स, हमें अपने नेबर्स की हेल्प करनी ही चाहिए, बिल्कुल मॉरली मीन्स आपको ऑब्लिगेटरी है, ये आपकी मौलिक आपका धर्म है कि आपको ये सारी चीज़ें करनी ही चाहिए। So that's all with the modals part, dear children, and I hope you people would have understood the modals clearly. Thank you so much for watching.